کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کی اسے خبر ہے، ہمارے دلوں میں گزرنے والے حالات کی اسے خبر ہے، پھر قیامت کے میدان میں کھڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد سارے نبیوں کے پاس یہ پوری قوم گھومے گی. سنا ہے کہ نہیں آپ نے حدیث؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس سفارش کرتے ہوئے جائیں. آپ کو سب یہ بار بار سن چکے ہو آپ، لیکن قیامت کے دن ہم ڈائریکٹ نبی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ معلوم ہے ہم کو دنیا میں سن کے آئے ہیں کہ فیصلہ وہی ہونے والا ہے، شفاعت وہی کریں گے، پھر بھی آپ قیامت کے دن کیوں گھومیں گے؟ اس لیے کہ یہ یادداشت یہاں پر ختم کر دی. دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ لوگ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آپ کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو لے کر آئے ہوں جو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے. جی ہاں دوستو، ہم اس ویڈیو میں اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی شان جاننے والے ہیں. جی ہاں دوستو، ہمارے نبی کے بارے میں کچھ لوگ، کچھ جاہل مولانا نے یہ بھی کہتا ہے جو ہمارے نبی نے مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارے نبی کے پاس علم غیب کا خبر نہیں. جی ہاں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت میں اپنے نبی کا شان اور اپنے نبی کا عظمت پوری دنیا والے کو دکھانے والا ہے. جی ہاں دوستو، اور جو لوگ ابھی یہ کہتا ہے جو نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نبی کے علم غیب کو خبر نہیں. جی ہاں دوستو، تو آئیے ہم سارا چیز مفتی سلمان اظہری صاحب سے پہلے ہم سنتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا عظمت، اپنے محبوب کا شان پوری دنیا کو کس وقت اور کہاں کہاں پہ دکھانے والا ہے. جی ہاں دوستو، آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر جائے. اگر آپ عاشق رسول ہیں تو، اگر نہیں ہے تو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کی اسے خبر ہے، ہمارے دلوں میں گزرنے والے حالات کی اسے خبر ہے، پھر قیامت کے میدان میں کھڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد سارے نبیوں کے پاس یہ پوری قوم گھومے گی. سنا ہے کہ نہیں آپ نے حدیث؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس سفارش کرتے ہوئے جائیں. آپ کو سب یہ بار بار سن چکے ہو آپ، لیکن قیامت کے دن ہم ڈائریکٹ نبی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ معلوم ہے ہم کو دنیا میں سن کے آئے ہیں کہ فیصلہ وہی ہونے والا ہے، شفاعت وہی کریں گے، پھر بھی آپ قیامت کے دن کیوں گھومیں گے؟ اس لیے کہ یہ یادداشت یہاں پر ختم کر دی جائے گی. قیامت کے دن جب اٹھو گے تو کورے اٹھائے جائیں گے، یہاں کی چیزیں نہیں. ہاں بہت تقریریں سنے تھے، بچپن سے سنے تھے. اسی لیے تو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں قبر کے جو 3 سوالات ہیں کتنے آسان ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اتنے آسان سوال ہیں، ہر کوئی یہاں پر دے دے گا، جس کو بھی پوچھیں بتا دے گا. میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ بچے بھی بولیں گے، لیکن یہ فرمایا گا یہ 3 سوالات کے جواب دینے کے لیے کسی قبر والے کو 100 سال لگ جاتے ہیں. کبھی کسی پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ تک یعنی عذاب ڈھاتے رہتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا. کیوں؟ یہاں کا جو کچھ بھی تھا وہ میموری پاور ختم کر دیا جاتا ہے، موت کے ساتھ یہ سب اڑ گیا. اب قبر میں وہی بولے گا جس پر مولا کا فضل ہوگا، جس کو رب تبارک و تعالیٰ عطا کر دے یہاں کی کچھ چیزیں، وہ بول سکے گا. اسی طرح قیامت کے دن یہ سب چیزیں بھول جائیں گی. اب میں یہ جو سوال کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کے پاس گھوم رہے ہیں، پھر اس کے بعد نامہ اعمال پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے سب محشر کے سامنے، اہل محشر کے سامنے. اس کو بھی آج ہم نے تلاوت کیا ہے سورہ معارج میں، سورہ حاقہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پڑھو. کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ تم نیکوکار ہو کہ گنہگار ہو؟ فائنل اعلان کر دے یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، بہت لمبا پروسیس ہے وہاں پر. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سنہ. آج وہ بھی ہم نے تلاوت کیا. اس کے بعد پھر میزان عمل، ترازو، اور پھر پل صراط. لیکن ہر جگہ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے کہ سارے نبیوں نے بھیجا کس کے پاس؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ وہاں جاؤ، وہ کریں گے. اس کے بعد جب نامہ اعمال پڑھنے کی بات آئی تب بھی فرشتوں نے کہا اگر نبی سامنے آ جائیں تو فرشتے ہلکا کر دیں گے. یہاں میزان عمل کی بات آئی تو ترازو،
वहां भी हुजूर फरमाते वहां पर भी मैं खड़ा हो जाऊंगा जब मेरे उम्मतियों के अमाल तोल रहे होंगे। हौज़े कौसर हुजूर फरमाते वहां पर भी मैं आ जाऊंगा प्यासों को पानी पिलाने के लिए। पुल सिरात जब गुजर रहे हो हुजूर फरमाते मैं एक कोने में खड़ा रहूंगा और रब्बि सल्लिम ये कहता रहूंगा। इसका मतलब यह है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। हुजूर ये दुआ करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है तो ये इतना लंबा होने के बाद फिर जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। बहुत लंबा हिसाब व किताब होने के बाद क्यों इतना लंबा किया गया है, इसको एक शेर में इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर मोहतरम फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये सारा जो वहां पर मामला होगा वो यही दिखाने के लिए कि तुम दुनिया में मुनकिर थे नबी की शान की, आओ देखो आज कहां कहां रसूल का मकाम व मर्तबा है। उनको छोड़ो तो फिर कुछ भी नहीं। हमारे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, यानी उनसे जो दूर हुआ वो जहन्नम में गया। अरे मियां है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, हाँ अंबिया कराम को भी जो है हाजत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हाँ मेरे अजीजों, यहां पर कुरान पाक में जिसने इनकार किया हुजूर की शान में तौहीन की आयतें उस पर आ गईं। आप क़यामत तक ये तिलावत होती रहेंगी आयतें और ऐसे जालिम की मजम्मत की जाती रहेगी। यहां से एक मसला और भी मैं बता दूं, बाज लोग ये कहते हैं कि मौलाना क्या जरूरत है उनके इनके बारे में बहुत सख्त जुमले बोलने की, जो कर रहा है उसको करने दो, अल्लाह तो उसको छोड़ेगा नहीं, मारेगा, उसको सजा देगा, अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। कोई भी गुस्ताखी कर रहा है हुजूर की तो आप इतना सख्त उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? ऐसी बातें जनाना बातें इसको कहते हैं, जिनको कुव्वत जुरात हक बोलने की कोई इस्तिताअत ना हो वो ये सब मशवरे देते हैं। वरना हम जो गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलते हैं ये ऐन अल्लाह की सुन्नत मुबारका है। रब्बे जुल जलाल ने कुरान में इरशाद फरमा दिया जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसका नुतफा सही नहीं, वो झूठा है, वो झूठी कसम खाता है, धोखेबाज है। और फिर कितनी उसकी 10 बुराइयां अल्लाह ने गिनाई। क्या तुम रब को भी ये कहोगे? उसके अलावा देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जब भी बात आई रब तबारक व तआला ने कैसे दिफा फरमाए, डिफेंस किया है। लोग आज हमें कहते हैं क्या जरूरत है इनके बारे में बोलने की। वैसे तो हम अपने अंदर मौजूद खराबियों को अगर ना बताएं तो फिर ये सड़न वैसी रह जाएगी, ये ऐसी रह जाएगी सड़न, और बाद में फिर इसको ही लोग अच्छा समझने लग जाएंगे। और हमारे दरमियान टोपी और दाढ़ी पहनने वालों में जब जुर्रत हो गई हुजूर की अजमत और शान पर बात करने की तो आज कुफार और मुशरिकीन भी सड़कों पर निकल आए मेरे नबी की तौहीन करने के लिए। वरना क्या उनको मजाल, क्या उनकी जुर्रत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठाएं। आज देखें हालात कैसे बनते चले गए हिंदुस्तान की भी। रोजाना कोई ना कोई एक गुस्ताख को वीडियो पर लाया जाता है और उससे बकवाया जाता है। ये तमाम चीजें ट्रायल, ये हमारे ईमान को नाप रहे हैं ये लोग कि ये अभी जिंदा हैं कि मरे हुए हैं, देख रहे हैं। बहरहाल हमारी सोने की जो कैफियत है वो वैसी कायम है। हम जो चादर ओढ़े सोए हैं हमारे ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, वो बड़े लोग कहाँ हैं? चलें ठीक है आपकी हमारी कोई हैसियत नहीं, वो बड़े कहाँ हैं जो ऊपर की कुर्सियों तक पहुंचे हैं? क्या उनके पास ऐसे पंजे नहीं कि इन गुस्ताखों को पकड़े? तो मैं गाली देना हो, बुरा भला कहना हो, हम बैठे हैं, हमारे ऊपर जितनी गालियां बकना है बको, हमारे खिलाफ बोलो जो बोलना है, हम इंसान हैं और हम सहने के लिए तैयार हैं। हम अपने मुतालिक दिफा नहीं करेंगे, हम यहां बात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कर रहे हैं। जब कभी कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोले
तो फिर मुसलमान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो खड़ा हो जाए और दिफा करे, क्योंकि मेरे मौला की सुन्नत है। देखिए, एक मर्तबा कुरान की जब आयतें उतरती थीं तो चंद दिनों तक आयतें नहीं आई, काफी दिन गुजर गए तो वही नहीं आई, तो कुफ्फारे मक्का और कुछ मुनाफिकीन ने बातें उड़ाना शुरू कर दिया। क्या कह करके कि वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, वद्दा का मतलब होता है छोड़ दिया, वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। अब खत्म हो गया मामला, आ नहीं रहे कुछ भी बातें उड़ाने लगे। यहां होता है छोटी सी बात के पीछे पड़े रहते हैं लोग। हुजूर को ये बात थोड़ा सा लगी, क्या मेरा रब मुझे छोड़ दिया? लोग ये कह रहे हैं वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, अल्लाह ने पूरी सूरह उतार दी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला। हाँ ऐ महबूब, तुम्हारे चमकते चेहरे की कसम, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी आपकी पहले से बेहतर की जाएगी। नहीं छोड़ा आपके रब ने। और जब किसी ने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और तीनों बचपन में इंतकाल कर गए, तो एक जालिम काफिर ने कहा कि मोहम्मद अबतर हो गए हैं। अबतर का मतलब होता है जिसकी नस्ल कट गई, नस्ल नहीं चलेगी। हुजूर की शान में ऐसी बातें कहने लग गए कि अबतर हो गए, बच्चे नहीं है, लड़कियां रह गई लड़के नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ताना जैसे जालिम काफिरों ने दिया, मेरे मौला ने फिर हुजूर का दिफा किया। डिफेंस में आयतें नाजिल, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर अता किया है, आप उठे नमाज पढ़ें कुर्बानी करें। और रही बात अबतर, जिसने कहा है आपको अबतर कटी हुई नस्ल का, इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, उसकी नस्ल कट गई। बताओ आज अबू जहल की नस्ल कहां है? बताओ आज अबू लहब की नस्ल कहां है? अबू लहब ने यह बात कही थी, है कोई उसके खानदान में से, उसकी औलाद में से पूरी दुनिया में? लेकिन हर मोहल्ले में जाओ, हर जगह जाओ, हुजूर की आल तुम्हें जरूर मिल जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सादाते किराम हर मुल्क में मौजूद हैं। मेरे आका की नस्ल में अल्लाह ने सबसे ज्यादा बरकत अता फरमाई। और महफूज अगर किसी का नसब दुनिया में आज तक है तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का नसब महफूज है, उनकी औलाद का जो सिलसिला है, इसलिए कि वो एहतमाम करते हैं। बाकी दूसरे लोग इतना एहतमाम नहीं करते, अपनी नस्ल अपने शजरे नसब की हिफाजत दूसरे खानदान वाले उतना नहीं करते जितना आले रसूल करते हैं। ये अल्लाह ने उनकी नस्ल को और नसब को महफूज फरमाया। बात मुझे ये करनी है, जिसने नबी के बारे में कुछ कहा अल्लाह ने आयत उतार दी कि आपका दुश्मन खराब है, आप नहीं, आप गमगीन ना हो। एक बार अबू लहब ने क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सबको हुजूर ने जमा किया मक्का की एक पहाड़ी पर, कहा आओ एक खुदा की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूं। तो अबू लहब गुस्से में उठा और कहने लगा तब्बन लक या मोहम्मद, यानी तब कहते हैं बुरा हो, खाक में मिल जाओ तुम, ए मोहम्मद, तुम्हारे मुंह और तुम्हारी ये मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने बुरे अल्फाज यूं कहा कि खाक में मिल जाएं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी आपके नहीं अबू लहब के दोनों हाथ खाक में मिल जाएं और वो बर्बाद हो जाए, वो हिलाक हो जाए। देखें तब्बत यदा सूरे ही उस दुश्मन रसूल के खिलाफ अल्लाह ने नाजिल फरमाए और पूरी उसकी मजम्मत में आई। यहां से पता चलता है कि यकीनन मोहब्बत रसूल की बातें हम जितना करते हैं, हमारे ऊपर एक फरीजा और भी है, गुस्ताखान रसूल की मजम्मत भी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कि कुरान का तरीका है, यह हमारा नहीं। हाँ, तरीका कौन सा हो? गाली गलोच नहीं। बाज लोगों ने रद्द करने को एक अलग ढंग इख्तियार कर लिया है, वो समझते हैं हम रद्द करने वाले, सबसे बेहतरीन रद्द करने वाले। कुछ नहीं होता, सिर्फ भौंकने को रद्द नहीं कहते हैं। किसी के खिलाफ ऐसे ही भौंकते चले जाओ तो लोगों को कुछ समझ में भी ना आए और पब्लिक परेशान होकर छोड़कर भागे कि ये
उसको इसको इतनी गालियां दे रहे हैं मौलाना स्टेज पे खड़े होकर के, इसका मतलब मजम्मत नहीं, मेरे मौला ताला ने किस अंदाज से और किन दलीलों से रद्द किया है, इसी अंदाज से वही तरीका इख्तियार करना चाहिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने के लिए। जब भी कभी कोई भी मामलात हो, मुहज्जब तरीका इख्तियार किया जाए, मुहज्जब तरीका इख्तियार किया जाए। एक मर्तबा खुद मेरे साथ का एक तजुर्बा है, मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारी महफिल में एक साहब ऐसे आए हुए थे जिनके नजरियात हमारे नजरियात से मिलते नहीं थे। वो कई दिन से बैठे और एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिसालत पर बोलते हुए मैंने जो भी इसके खिलाफ नजरिया रखता है उसका रद्द मैंने किया कि ये गलत तरीका है जिन लोगों ने ये ख्यालात जमा ली। हुजूर पाक की शान में ऐसे ऐसे अल्फाज कह देना ये गलत है। उसके बाद जब हमारा बयान हो गया, तकरीर हुई, तो सब जैसे मिल रहे थे, वो साहब भी मिलने आए, कहा बहुत अच्छा बोला हज़रत आपने। मैं जानता था, मैंने कहा मैं तो आपके खिलाफ बोला हूं, आपको तो मालूम है कि आपका नजरिया हमारे नजरिए से मिलता नहीं है और आपके खिलाफ मैंने आज कहा है। तो एक बात जो उस साहब ने कहा था वो मुझे अच्छी लगी थी, यही चीज मैं सबको ये कहता हूं। उसने कहा सही है आपने रद्द किया, लेकिन जिस अंदाज से किया वो मुझे भी पसंद आया। एक चीज यही है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उदउ इला सबीली रब्बिक बिल हिकमा वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे और अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी का शान दिखाने के लिए, अपने नबी का अजमत बताने के लिए कल बरोज कयामत में इंसान को कैसा हिसाब व किताब देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने तो पूरी वीडियो देख ही लिए होंगे। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरीके का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।